Bismillahirrahmanirrahim. We will continue our lecture from slide number 10. Okay, merge and burst events. Just want to repeat that merging mean 1, 2, 3, 4 activities are going to be merged into one activity. That is a merge event. Left side पर आपको शक्ल नजर आ रही होगी. Burst event mean from the starting point they are going 1, 2, 3 up to 4, up to limited number of events can be started. That is called burst event. Proceedings and succeeding activities. Right? Activities performed before given events are known as preceding activities. It says activities performed before given events. जो भी आपको इवेंट गिवन है, whatever you want to do in any project, वो जो आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, that is called preceding activity. And the activities performed after a given event are known as succeeding activity. And after preceding activity, everybody will perform succeeding activity. आने वाली जितनी भी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, that is called succeeding activity. Right? The first, everybody will perform preceding activity, and after the preceding activity, everyone or nominated person, ठीक है जी, as a project engineer, as a project manager, you allocate different duties your subordinates, and your subordinates will perform duties that is called preceding activities, and after that preceding activity everyone will do succeeding activities. तो इस पिक्चर में ए और बी जो है वो these are preceding activities and C and D are the succeeding activities. Okay जी, activities A and B preceding activities and C and D are succeeding activities respectively. Okay जी, dummy activity. Dummy, an imaginary activity which does not consume any resource and time, is called dummy activities. ठीक, A, B, C, these are the three activities are shown in the picture, and the fourth one is dummy activities. So the name of the dummy activities is called the imaginary activity which does not consume any resource. इस activity में we will not consume any kind of resource and time. So this is a zero activities. किसी को शो करवाने के लिए कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं, बट अगर देखें ये बी कुछ काम कर रहा है और सी भी कुछ काम कर रहा है, ठीक है, बात को अंडरस्टैंड करना है, बी भी कुछ काम कर रहा है और सी भी कुछ काम कर रहा है, एंड यू वांट टू स्टार्ट हियर, जहाँ पर मेरा माउस है ऊपर वाले सर्कल के बाद आपने यहाँ पर आगे कोई काम शुरू करना है. तो अब बी कहता है मैं वेट कर रहा हूँ सी का, सी कहता है मेरा काम मुकम्मल है, बी कहता है मेरा काम भी मुकम्मल है, बट क्वेश्चन में या तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके आगे प्रोसेस जो भी काम करना है, या इसके आगे स्टार्ट करेंगे, दो से इकट्ठा नहीं हो सकता. तो फिर हमें किसी इसको या इधर आना पड़ेगा या इसको उधर आना पड़ेगा. अब इसकी नेटवर्किंग डायग्राम में सबको एक जगह जंक्शन बना के इकट्ठे होना पड़ता है. तो ये आगे आगे क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो इसको सिंपल उस तरफ एरो शो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डमी. Dummy activities are simply used to represent a connection between event in order to maintain a logic. Right? The dummy activity is simply used to represent a connection. Connection कर दिया कि जी इसने इसके बाद इधर जाना है. Between event in order to maintain a logic in the network. It is represented by a dotted line.
you always mention in dotted line, not a single line, straight line. If you want to show in the figure of networking with respect to dummy activity, you will show dotted line. See figure. आ गया जी, एरर्स टू बी अवॉइडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्किंग डायग्राम। नेटवर्किंग डायग्राम हमने आगे सीखनी है, कुछ चीज़ें पहले थी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग एरर लोग अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन नेटवर्किंग डायग्राम खराब हो जाती है। अब वो एरर कौन कौन से हैं? द टू एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेल, ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड पर उसने कहा इनकरेक्ट है, राइट साइड पर उसने कहा करेक्ट है। तो द टू एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेल event must not have a same event. To ensure this, it is absolutely necessary to introduce a dummy activity as shown in the figure. So if anybody want to start a project that is called one, and the event one has been started, after completion of second event we will start द थर्ड इवेंट। सब ने 3 तक पहुंचना है, एक ने 2 से काम कोई करना है और 2 ने 3 तक पहुंचना है, एक कहता है मैंने भी ये भी कुछ काम करना है। तो इनकरेक्ट कि आप डायरेक्ट 1 को उठा के 2 पर नहीं ले जा सकते, ठीक है। 1 और 2 स्ट्रेट लाइन में शो करना है। ये नहीं हो सकता कि 1 से 2 ऑलरेडी आपने शो किया हुआ है और आपने एक और लाइन बना दिया ऊपर से घुमा के नीचे तक। नो, नेटवर्किंग डायग्राम में एरो हमेशा सीधी लाइन में होंगे, याद रखना है आपने। नेटवर्किंग डायग्राम में एरो की जो शक्ल है इट विल बी मेंशन्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉट इन अ सर्कुलर वे। सो जो भी एरो अगर नेटवर्किंग डायग्राम में इफ एनीबॉडी शो इन अ सर्कुलर लाइन दैट विल बी कंसीडर्ड निग्जिलेबल, वो निगलेक्ट हो जाएगी वो लाइन। तो जितनी भी आप डायग्राम बनाएंगे वो आपके सारे सीधे एरो होंगे। Error of the to be avoided in the construction of a network, the looping error should not be performed in the network। कि आपने 1 से 2 काम किया, 2 से 3 काम किया और 3 को उठा के फिर 1 पर ले आए, ऐसे नहीं होता। यानी 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से आगे 4 होगा। प्रोजेक्ट जब करते हैं तो आगे ऐसे तो नहीं होता ना कि 1 से 2 काम किया, 2 से 3 काम किया और 3 से फिर चौथा काम करना है, ठीक। लेकिन आपने एरो गलत डायरेक्शन में लगा दिया, आप वापस 1 पर आ गए। यानी 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए और 3 से 4 पर जाने की बजाय एरो आपने 3 से 1 पर लगा दिया। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जी मैंने कुछ काम किया, 2 बनाया, फिर 2 से 3 काम किया और फिर 3 से ऐसा काम किया कि वो दोबारा 1 पर आ गया। इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द ऑपोजिट डायरेक्शन एरो। तो लूपिंग एरर इसको कहते हैं कि एक पूरा लूप बन जाता है इसमें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। ये काम नहीं करना, हमेशा आगे फॉरवर्ड ही होगा काम, जो भी प्रोजेक्ट में होगा वो आगे चलेगा, पीछे नहीं आएगा। Looping error should not be performed in a network as it represents performance of activities repeatedly in a cyclic manner। ठीक, साइक्लिक मैनर में आपने इसको नहीं बनाना। बस प्रोजेक्ट आगे हमेशा चलता है, एक नया स्टेप हो जाए खत्म तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है तीसरा शुरू हो जाता है, चौथा खत्म हो तो चौथा पांचवा शुरू हो जाता है। ये नहीं होता पांचवा खत्म हुआ हो तो आप उसको वापस 1 पर ले आए। तो लूप नहीं बनाना आपने। In a network, there should be only one start event and one ending event as shown in the figure। ठीक, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप उसके एक स्टार्टिंग इवेंट से शुरू करेंगे और एंड भी आखिरी एक इवेंट पर ख़त्म करेंगे। एक से स्टार्ट किया और दूसरे पर ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब स्टार्टिंग और फिनिशिंग पर एक ही इवेंट शो हो रहा है। जैसे एक पर स्टार्ट किया तो 1 से 2 काम हुआ, 2 से 3 हुआ और 1 से ने भी 3 पर काम किया, यहाँ पर 3 पर आके ख़त्म कर दिया। तो एक ही डॉट से स्टार्ट हुआ था और एक ही डॉट पर आके फिनिश हुआ।
The direction of the arrow should flow from the left to right, avoiding mixing of the direction shown in the figure. हमेशा लेफ्ट से राइट शो होगा या ऊपर से नीचे होगा, नीचे से ऊपर होगा, राइट से लेफ्ट कभी नहीं आनी. डायग्राम राइट से लेफ्ट नहीं आएगी. नेवर मूव फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. Rules and the construction of the networking diagram. No single activity can be represented more than once in a network. कोई किसी भी नेटवर्क एक्टिविटी को आपने एक ही दफ़ा मेंशन करना है. ठीक, मसलन यहाँ लिखा एक, यहाँ लिखा दो, यहाँ लिखा तीन, तो आप ये नहीं कर सकते एक दो फिर दोबारा एक लिख दें. रिपीट नहीं करना, बस 1 2 3 आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. ये तो नहीं हो सकता 1 वाला काम स्टार्टिंग शुरू किया था, फिर 2 बना, 2 से 3 बना और 3 की जगह आप एक फिर लिख दें. तो 1 को 2 टाइम्स इट डजंट मेंशन. तो कोई भी सिंगल एक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड मोर देन वंस. आपने उसे एक दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिख सकते. द इवेंट नंबर 1 इज द स्टार्ट इवेंट एंड द इवेंट विद हाईएस्ट नंबर इज द एंड इवेंट. जो भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो इट स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड इट विल फिनिश द हाईएस्ट नंबर. जैसे यहाँ पर 3 पर एंड होना था, 1 से स्टार्ट हुआ है. ठीक, मतलब अगर एक्टिविटी आगे क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, 1 2 3 4 5 चलता जाएगा. तो अगर आप 7 पर एंड कर रहे हैं तो 1 इज़ द लोएस्ट नंबर इवेंट, 1 इज़ द स्टार्ट नंबर एंड द इवेंट विद हाईएस्ट नंबर, जो भी 7 हो हाईएस्ट होगा. आप ऐसी डायग्राम बनाएं जिसमें कोई 10 तक गिनती लिखी हो और पता चले जी आप 9 पर एंड कर रहे हैं. नहीं, जब 10 लिख दिया है तो फिर 10 पर ही एंड करना है, हाईएस्ट नंबर पर आपने एंड करना है और 1 से हमेशा स्टार्ट करना है. In assigning numbers to events, there should not be any duplication of event numbers in a network. जो भी आप असाइन कर रहे हैं उसकी डुप्लीकेशन नहीं करनी, मैंने आपको पहले कह दिया. The dummy activities must be used only if it is necessary to reduce the complexity of a network. और डमी एक्टिविटी को कब यूज़ करना है? जब आप कोई समझते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही या कोई कम्प्लेक्सिटी भी पैदा हो गई है, देन यू कैन यूज डमी एक्टिविटीज़. डमी एक्टिविटीज़ में कोई इवेंट शो नहीं होता, डमी है वो. ए नेटवर्क शुड हैव ओनली वन स्टार्ट इवेंट एंड वन एंड इवेंट. हर नेटवर्क डायग्राम में एक स्टार्ट इवेंट होगा और एक इवेंट फिनिश वाला होगा. Some convention of a network diagram. Activity B can be performed only after completing A. ठीक, रेड कलर में जो B शो हो रहा है, इट मीन्स कि आप B उस वक्त होगा कंप्लीट जब A की एक्टिविटी कंप्लीट होगी. एंड द एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड ओनली कंप्लीटिंग एक्टिविटी B. When we start C activity, yes, when the B activity will be completed, then C activity will be started. So when C will be finished, then activity D will be started. तो एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी. Activity B and C can start simultaneously only after completing A. एक काम करने के बाद अगर आप कोई दो काम इकट्ठे शुरू करना चाहते हैं तो इज इट पॉसिबल? ए एक्टिविटी के बाद इकट्ठे दो काम भी शुरू किए जा सकते हैं. जैसे एक ने पैसे, पापा ने पहले एक्टिविटी थी, अब्बू ने पैसे दिए तो एक गोश्त लेने चला गया तो एक दूसरी कोई सब्जियां लेने चला गया. ठीक है जी, दो एक्टिविटी कोई भी स्टार्ट की जा सकती है. या अगर पीछे से दो, जैसे जी गोश्त भी आ गया और बी का मतलब है मसाले भी आ गए तो आगे कुकिंग शुरू हो गई. ठीक है जी, सी का मतलब ये है. ए का मतलब गोश्त आ गया, दो एक्टिविटी मिलके एक एक्टिविटी हो गई, दो चीज़ें आई तो इकट्ठा एक काम होना शुरू हो गया. इट इज़ आल्सो पॉसिबल. ए ने अलहदा काम किया, बी ने अलहदा काम किया, सी ने फिर अलहदा काम किया, डी ने अलहदा काम किया और सारा खाना तैयार हो गया. ठीक, ए ने डिफरेंट टू वर्क्स किए, बी और डी ने डिफरेंट काम किए. ये डिपेंड करते हैं काम किस किस्म के हैं. नाउ द प्रोसीजर ऑफ द नंबरिंग द इवेंट्स यूजिंग फल्करसन रूल्स. फल्करसन जिसने ये नेटवर्किंग डायग्राम बनाई थी उसके रूल्स के मुताबिक द नंबर स्टार्ट ऑन इनिशियल इवेंट 1
always start the networking diagram from the number 1 point. हर बंदा हर बच्चा एक नंबर से अपनी नेटवर्किंग डायग्राम स्टार्ट करेगा. From event 1, strike off all outgoing activities. This would have made one or more events as initial events. Number that event as 2. ठीक. From event 1, strike off all outgoing activities. This would have made one or more event. आप एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 2 या 3 4 जितनी भी एक्टिविटी बनानी है बना लें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन. जो भी आपको एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, इट डिपेंड्स कि काम कौन सा है. किसी ने मैकेनिक का काम करना होगा, मोटरसाइकिल होगी तो मैं काम स्टार्ट करूंगा ना, मैं कैसे मैकेनिक की शुरू कर दूं. तो पहली एक्टिविटी आएगी तो आप कहते हैं जी दूसरी एक्टिविटी में हम एक टूनिंग करेगा, एक सफाई करना शुरू कर देगा, एक उसकी ऑयल फिल्टर चेंज करना शुरू कर देगा. तो पहला काम का मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मोटरसाइकिल. अब अवेलेबिलिटी ऑफ मोटरसाइकिल होगी तो तीनों काम आगे शुरू हो सकते हैं, आप जो भी शुरू कर दें. रिपीट स्टेप 2 फॉर इवेंट 2, इवेंट 3 टिल एंड इवेंट. इसी तरह आप अपने स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएं और एंड तक चले जाएं. अच्छा जी, अब ये एग्जांपल समझें. अदनान अली, आर यू हियर? ज़ीशान दिलावर, जी सर. मेरी बात आ रही है? जी सर आ रही है. अदनान अली किधर है? सो गया? पता नहीं सर. हुजैफा शहजाद, यस सर. बेटा आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर सर. ओके हो गया. अब जरा एग्जांपल समझें. एग्जांपल से एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड वेरी इजीली. कुछ भी अगर समझ नहीं आई आज तक इस नेटवर्किंग डायग्राम में तो डोंट बॉदर, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. एग्जांपल 1 है, द ड्रा ए नेटवर्किंग डायग्राम फॉर ए हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. वो कहता है एक हाउस कंस्ट्रक्शन हमने करनी है प्रोजेक्ट की, उसकी ड्रॉ नेटवर्किंग जो डायग्राम है वो ड्रॉ करें. The sequence of the activities with their procedures are given in the table 8.1. Below table sequence A activities for house of the construction project. अब देखें, the column shows in the row, first row, name of the activity A, B, C, D, E, F and starting and finishing events. Right? Starting and finishing event 1, 2, 2, 3, 3, 4 ही मैं आपको बताता हूँ. Description of activity: prepare the house plan, construct the house, fix door windows, wiring the house, paint the house, polish door and windows. घर किस तरह तैयार होता है उसने एक डिस्क्राइब किया हुआ कि सबसे पहले आपने घर का प्लान बनाया, फिर घर की कंस्ट्रक्शन शुरू की, डोर और विंडो फिक्स किए, वायरिंग की, पेंट किया और विंडोज को पॉलिश किया. ठीक है जी, इस तरह सारा घर तैयार हो गया. अब प्रीडिसेसर का मतलब है, फिर सुन लें, प्रीडिसेसर का मतलब उससे पिछले वाले, यानी जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे हैं उससे पिछले वाला है वो फलां बंदा. जैसे आपने गौर से सुनना है कि प्रोजेक्ट ए स्टार्ट किया तो ए तो स्टार्ट है ना, उसके पीछे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, इसलिए उसने डैश लगाया है. द फर्स्ट इवेंट ए, द प्रेडिसेसर इज ब्लैंक. ठीक. द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी. जी जी, कौन बोला है? अच्छा जी. प्रिपेयर द हाउस प्लान, द टाइम ड्यूरेशन इज 4 days. आपने हाउस को प्लान करना है तो आपने 4 दिन मांगे हैं. उसके बाद बी एक्टिविटी शुरू होगी जिसमें आप होम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. उस बी एक्टिविटी में उसका प्रीडिसेसर ए होगा, यानी पहले हम ए परफॉर्म कर चुके हैं. हर इवेंट का
हर एक्टिविटी का आपने प्रीडेसेसर भी लिखना होता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन 58 है। इसी तरह जब हम फिक्स डोर करेंगे तो जो सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो उसका प्रीडिसेसर बी है, यानी सी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करेंगे उससे पहले कौन सी हो चुकी है, बी। और डी भी वो कहता है वायरिंग द हाउस। जाहिर बात है जब आपकी हाउस कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो आप डोर और विंडो वालों को भी कह देंगे कि अपना काम शुरू कर दो, और साथ ही आप वायरिंग हाउस वालों को भी कह देंगे कि अपना काम शुरू कर दें। तो दोनों एक्टिविटी जो सी और डी हैं उसके पीछे हमें बी चाहिए। तो बी क्या चाहिए, यानी कंस्ट्रक्शन किया हुआ घर चाहिए। उस वजह से आपको वो आपकी सी और डी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जो कि दो दो दिन में आपने कंप्लीट करनी है। एंड द पेंट ऑफ द हाउस इज 1 day, दैट इज इवेंट एक्टिविटी, और उस ई से जो है वो सी पर है। जैसे ही आपकी डोर और फिक्स हो जाएंगे तो आपको पेंट भी इजाज़त मिल जाएगी कि आप सी काम शुरू कर दें। और एफ एक्टिविटी है पॉलिश द डोर्स एंड विंडो, और ये कब आपने स्टार्ट करनी है, जब आपको इजाज़त मिल जाएगी कि आपका डी प्रीडिसेसर शो कर रहा है, जब आपका डी कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक एक दिन में कर रहा है। बहरहाल ये कोई छोटा सा एक प्लान है प्रोजेक्ट का, उसका उसने बताया। अब इसकी नेटवर्क की कैसे ड्रॉ करनी है, द क्वेश्चन इज दिस, लुक एट दिस डायग्राम। वन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड ए, वन से स्टार्ट किया। ए एक्टिविटी क्या थी, प्रिपेयर द हाउस प्लान। ठीक है जी, गौर से समझना है, ये ऊपर लिखा हुआ है प्रिपेयर द हाउस प्लान, 4 days में हुआ। दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, कंस्ट्रक्ट द हाउस, ये लिख दिया कंस्ट्रक्ट द हाउस बी। ठीक है जी, नीचे लिख दिया 58 days में कंप्लीट हुई। नंबर 3 आ गया। अब बी से पहले क्या है, ए, इधर भी लिखा हुआ बी से पहले ए, क्वेश्चन के मुताबिक चलना है। बी से पहले सारे अपने अपने माइक ऑन करें ताकि मैं कोई किसी से भी पूछूं वो फौरी जवाब दे। ए क्वेश्चन में बी से पहले ए लिखा है तो आपने बी से पहले ए आ गया। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि सी और डी से पहले दोनों बी। ठीक है जी, सी से पहले भी बी है और डी से पहले भी बी है। सी से पहले कोई बताए, सी से पहले क्या है, डी सर। ठीक है, और डी से पहले डी सी सर। डी 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 फॉर डॉग, डॉग डी से पहले क्या है, सी सर। बेटा मैं डी बोल रहा हूं, मैं डी बोल रहा हूं, डी डी वायरिंग द हाउस, उससे पहले क्या है, बोले जल्दी जल्दी करें ना, मेरी आवाज नहीं आ रही। बी सर। या तो मेरी आवाज कट रही है तो आप मुझे बताएं मेरी आवाज नहीं आ रही। सर बी होगा उससे पहले भी। होगा नहीं ना यार, ये होगा क्यों कहते हैं, देखें बी और सी और डी से पहले क्या लिखा हुआ है, यहां पर यहां लिखा हुआ कंफर्म है, होगा नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो टेबल है, टेबल जो है आपका पार्ट होगा, वो आपको क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है जी, सी से पहले बी है, डी से पहले बी है, बी से पहले ए है, और ए से पहले कुछ नहीं है। ए आपने अब एक बंदा पूछता जाए बार बारी, ए से पहले क्या है, कुछ नहीं है। बी से पहले ए है। ए सर। ठीक है, सी से पहले क्या है, बी बी सर। ठीक है, डी से पहले भी बी, और ई से पहले क्या है, बी नो। डी डी सर। ई से पहले, ई से पहले सी है सर। सर डी से पहले डी सर, डी से पहले डी भी है। अभी जो बोल रहे हैं ना वो आए सामने मेरे, आप क्या बोल रहे हैं।
क्वेश्चन समझ, अगर जब तक नेटवर्किंग डायग्राम ना समझ में आई ना, आगे क्वेश्चन नहीं होगा। फिर सिंपल क्वेश्चन टेबल में बना हुआ है, तो उसने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है और कौन कौन सी एक्टिविटी उससे पहले होनी है। तो ई से पहले क्या है? ई है सर। और एफ से पहले? ई है। ई सर। नहीं ना, मेरी बात कोई भी नहीं समझ रही है। ई से पहले क्या है? ई से पहले डी सर। नहीं, किसने कहा? बी कौन बोल सर, रहा है बी। यार? ये जो डी बोल रहा है ना, वो सामने आए मेरे। अपना कैमरा ऑन करो। जी बच्चे जल्दी करें ना यार। आपने एक्टिविटी को देखते हुए प्रीडिसेसर देखना है। हर एक्टिविटी का जो कॉलम है उसके सामने जो प्रीडिसेसर का कॉलम है उसको देखना है। ए को जब आप एक्टिविटी को देखते हैं तो प्रीडिसेसर शो करता है, दैट इज ई एम्प्टी इवेंट, यानी ए से पहले तो कोई इवेंट नहीं होगा ना। ए से पहले तो आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, ए तो पहला काम है। तो ए का प्रीडिसेसर का मतलब कि ए प्रीडिसेसर मीन उससे पहले, प्रीडिसेसर मीन पहले सर। मोहम्मद एहसन बोलो यार, आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। शोर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज नहीं आ रही, मैं आपको कह रहा हूँ, आप फिर बोलते आ रहे हो। नहीं, आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आवाज आ रही। कोई कह दे आवाज आ रही है। अदनान अली, हुजैफा, बताइए इसकी आवाज आ रही है? सर शोर आ रहा है। यही तो कह रहा हूँ, आप फिलहाल ऐसा बंद कर दो अपना माइक। ऐसे माइक बंद करें। हुजैफा शहजाद। यस सर। A, B, C, D, E, F. The first column is showing to you the name of the activities. For complete the house, we will सर। perform a 6 activities. 1 A, B, C, D, E, F. And predecessor shows the activity performed before the actual activity perform. यानी ए से पहले कौन सी हमने एक्टिविटी की थी? कोई भी नहीं की। प्रीडिसेसर शो कर रहा है कोई भी नहीं की थी। बी एक्टिविटी एम्प्टी सर। एम्प्टी। और बी एक्टिविटी से पहले हमने क्या किया था? ए एक्टिविटी। ये कैसे पता चला? क्योंकि बी एक्टिविटी के सामने लिखा हुआ है प्रीडिसेसर में ए। और सी एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी हुई थी? बी। सर। डी एक्टिविटी से पहले भी कौन सी परफॉर्म हुई थी? बी हुई थी, क्योंकि प्रीडिसेसर शो कर रहा है बी है। और ई एक्टिविटी से पहले भी सी हुई थी। According to the question, predecessor shows the perform before the activity. F activity will perform after completion the D activity. जब D activity complete होगी तो F perform होगी। ये क्वेश्चन उसके मुताबिक बनाया है। A आपकी एक्टिविटी हुई, फिर B हुई, उसके बाद C और D, क्योंकि C और D के दोनों के पीछे B आता है। अगर आप गौर से देखें, C और D दोनों एक्टिविटी के पीछे B आ रहा है, तो आपको फिर B से 2 एरो निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए उसने 20 के बाद सी और डी से 2 एरो निकाल दिए। अब आप सी के पीछे देखेंगे तो वो भी बी है, और डी के पीछे देखेंगे वो भी बी है। क्वेश्चन में सी के बाद उसने ई किया है, ई के पीछे सी आता है, क्वेश्चन में भी ई के पीछे सी आता है, और क्वेश्चन में एफ के पीछे डी आता है, और डी के बाद उसने एफ लगा दिया। यहाँ पर आके उसने खत्म कर दिया है। इसलिए आपको ई और एफ दोनों अकॉर्डिंग टू दी रूल्स आपको एक 6 नोड पर खत्म करने हैं। तो आपने ई और एफ के जो एरो हैं
वो आपने एक ही नोड पर आके खत्म कर देने हैं। ये कंप्लीट नेटवर्किंग डायग्राम है इस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की। ठीक, एक रूल्स फर्स्ट के मुताबिक आपने एक मोड से स्टार्ट किया और मैक्सिमम 6 पर आके खत्म किया। जितने भी एरो आ रहे होंगे वो सारे ए पर आके खत्म होंगे, और सारे लेफ्ट से राइट एरो यूज करने, कोई एरो राइट से लेफ्ट नहीं यूज करना। दिस shows the networking diagram representing house construction a project। ये उसकी डिटेल लिखी हुई है सारी। ठीक, जो हमने कैसे आपको, अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आई तो वो आप ये डायग्राम देख लें, उसको आपको समझ आ जाएगी। अब ये एक असाइनमेंट आपने ड्रॉ करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, कंसीडर द प्रोजेक्ट given in table and construct a networking diagram table sequence for activities building। जस्ट आप अब ए और बी, वो कहता है परचेज द लैंड एंड प्रिपेयर इन द बिल्डिंग प्लान। एक बंदे को आपने कह दिया कि जाओ और लैंड परचेज करके आओ, क्योंकि अब हमने फैसला कर लिया, आपने सिर्फ उसको पैसे देने हैं। दूसरी प्लान, कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्लान कह दिया भी मैंने ये प्लॉट खरीद लिया, मैं आज पेमेंट करने जा रहा हूं, तो आप इसकी प्लान, बिल्डिंग प्लान बनाएं। तो ए और बी दोनों इकट्ठे आपने काम शुरू कर दिए, तो इसलिए उसके पीछे उन्होंने प्रीडिसेसर में एम्प्टी शो किया, खाली हैं। और लेवल और क्लीन द लैंड, अब आप लैंड को साफ और लेवल करने जा रहे हैं, तो उस सी का मतलब ये है कि वो ए उससे पहले आता है। और डी, जब आप रजिस्टर एंड गेट अप्रूवल, जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाती है, अप्रूवल उसकी मिल जाती है, तो आप डी काम शुरू करते हैं। और उससे पहले उसने कहा ए और बी आएंगे। कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, ई एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, एंड ई एक्टिविटी विल बी स्टार्टेड आफ्टर सी एक्टिविटी, क्योंकि ई के बाद, एक्टिविटी के बाद उसने सी प्रीडिसेसर शो किया है कि आपने ई उस वक्त शुरू करना है, एक्टिविटी ई उस वक्त शुरू होगी जब सी खत्म होगा। एंड पेंटिंग द बिल्डिंग, जब आप एफ बिल्डिंग को पेंट करेंगे, एफ एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, एंड देन द डी एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड। जब आप डी की कंप्लीट एक्टिविटी हो जाएगी तो आप एफ स्टार्ट करेंगे। एंड यू विल कंप्लीट दिस असाइनमेंट, जस्ट नेटवर्किंग डाक करेंगे एंड सेंड टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ग्रुप में नहीं शेयर करना, अलग-अलग मेरे नंबरों पर शेयर करना है, क्योंकि ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ये असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। डोंट सेंड ऑन द ग्रुप प्लीज। ठीक है, समझ आ गई सबको? एंड ऑन मंडे, सॉरी वेडनेसडे, वी विल स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 3। जरा लंबी सी एग्जाम्पल है और अच्छी, आपको नेटवर्किंग डायग्राम के और अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन पता चलेंगे। So complete assignment number 2 on the today. I will just give you the time of for today only. Right, रात 12 बजे से पहले everybody should send assignment on my email और WhatsApp। मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ये असाइनमेंट भी शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग ईमेल कर दें या बनाएं, पेंसिल से, बॉल पेन से बना के व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पर, और ग्रुप में नहीं फेंकना बार बार। और आज की डेट में भी करना है ये। इस असाइनमेंट के आपके सेशन नंबर जो होंगे 30, उसमें से इस असाइनमेंट के भी कुछ नंबर होंगे, तो इसलिए बी केयरफुल। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ग्रुप में क्वेश्चन करें कि सर मुझे इस क्वेश्चन असाइनमेंट से मुतल्लिक नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअल कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने अपना पर्सनल बनाया हुआ। बोले एक दफा डायग्राम दिखा दें, तरीका देखना कैसे बनाई हुई है जी, किसी किसी भी सॉल्यूशन की। सर पिछले वाली, सर एक एग्जांपल का सॉल्यूशन दिखा दें, सिर्फ मेथड देखना किस तरह बनाई हुई है बात। तुम अभी आए हो, इसका मतलब ये मैंने बनाया तो है, ये क्या चीज है, ये मैंने सिखाई तो है। सर मैं पहले था, हाँ पहले सर देखना बस। ठीक है सर, ओके हो गया। एक एग्जांपल सर बेटा मैंने नंबरिंग शो आपको करनी है बात सर। एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, दूसरा आप असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद देन वी विल स्टार्ट एग्जांपल नंबर 3 इन डिटेल। हम एग्जांपल नंबर 3 डिटेल में पढ़ेंगे जरा, फिर आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। तो एवरीबॉडी शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट टुडे ओनली। आई विल गिव यू द टाइम ऑफ बिफोर कह लें 12 o'clock टुनाइट। ओके, ओके सर जी। चलें, अटेंडेंस लगाएं।
कैमरा ऑन करें जल्दी से, मैं अटेंडेंस लगाऊं। प्लीज। नौ 21 रोल नंबर ने आखिर में लगाई है। चले ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।